ہمارے دائیں جانب کوئی آدھے میل کے فاصلے پر کچھ افراد ایک قطار کی صورت میں پہاڑ پر چڑھ رہے تھے اور وہ چوٹی کے کافی نزدیک پہنچ چکے تھے۔ وہ سب ہمیں بیک وقت نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں ایک ایک کر کے گنا۔ وہ کل 11 افراد تھے۔ ظاہر نے کہا ان کی تعداد 11 ہے جناب۔ میری طرح اس نے بھی ان کی گنتی کی تھی۔ میں نے کہا تم نے درست تعداد بتائی ہے ظاہر، میں نے بھی گنا ہے، وہ 11 افراد ہی ہیں۔ وہ بولا اور آپ نے غور کیا جناب ان کے پاس ایک عدد وائرلیس سیٹ بھی موجود ہے۔ میں نے کہا اگر نہ ہوتا تو مجھے تعجب ہوتا۔ ان ویران اور بنجر پہاڑوں میں کسی کو تلاش کرنے کی مہم کے دوران وائرلیس یا ٹرانسمیٹر موجود ہونا ضروری ہے۔ ظاہر بولا 11 افراد بہت ہوتے ہیں جناب، وائرلیس کی موجودگی انہیں اور بھی خطرناک بنا دیتی ہے۔ میں نے کہا ان کی خطرناکیوں پر غور کرنے کی بجائے اس بات پر توجہ دینے کی کوشش کرو کہ وہ ہمیں کس سمت میں تلاش کریں گے۔ ہم خاموش ہو گئے اور انہیں چڑھائی سر کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ اسی دوران میں وقتاً فوقتاً نیچے موجود مرکزی پارٹی پر بھی نگاہ ڈالتا رہا تھا، مگر ابھی تک ان کی روانگی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے تھے، اور یہ اندازہ لگانا تو سراسر ناممکن تھا کہ پہاڑی کے نشیب و فراز میں مزید کس قدر افراد ہماری تلاش پر مامور تھے۔ تاہم یہ بات یقینی تھی کہ جتنے افراد ہمیں دکھائی دے رہے تھے ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہمیں تلاش کر رہے تھے۔ پھر ہمیں ہیلی کاپٹر کی منحوس آواز سنائی دی۔ وہ آواز ہمارے بائیں جانب سے آ رہی تھی۔ میں نے ظاہر سے کہا ذرا دیکھو تو صحیح ہیلی کاپٹر کہاں ہے؟ ظاہر نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھ کر آتا ہوں، اور وہ دوسری طرف رنگ گیا۔ ظاہر کے جانے کے بعد میں نے دوبارہ ہراول دستے کی طرف دیکھا۔ وہ بلندی پر پہنچ چکے تھے اور ان میں سے ایک شخص وائرلیس کا ایریل درست کر رہا تھا۔ پھر اس نے رپورٹ پیش کرنا شروع کر دی۔ میں نے نیچے والی پارٹی کے لوگوں کو پیغام وصول کرتے دیکھا۔ مکمل رپورٹ دینے کے بعد ہراول دستے کے ارکان اطمینان سے بیٹھ گئے۔ انہوں نے سگریٹیں سلگالی تھیں اور خوش گپیاں شروع کر دی تھیں۔ 10 منٹ گزر گئے۔ پھر میں نے نیچے موجود پارٹی کے لوگوں کو کھڑے ہوتے دیکھا۔ یقیناً انہیں روانگی کا حکم مل گیا تھا۔ پھر وہ سب چلتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں ان کے دوبارہ نمودار ہونے کا منتظر تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ وہ کس طرف کا رخ کریں گے، اس لیے کہ جس طرف وہ رخ کرتے ہراول دستہ بھی اسی سمت میں جاتا، اور چونکہ ہراول دستہ اور ہم دونوں پہاڑ کی چوٹی پر تھے اس لیے ہمارے درمیان تصادم کا خدشہ تھا۔ کچھ دیر بعد ظاہر واپس آ گیا۔ اس نے بتایا ہیلی کاپٹر ہمیں پہاڑ کے سامنے والے حصے میں تلاش کر رہا ہے اور وہ بائیں سمت ہم سے بہت فاصلے پر ہے۔ میں نے مطمئن انداز میں کہا ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ اور افراد بھی نظر آئے؟ وہ بولا ہاں، پہاڑ کی 2/3 بلندی پر بہت سے مزید افراد نظر آ رہے ہیں جو یہاں سے نظر نہیں آ رہے۔ میں نے کہا مجھے اندازہ تھا کہ اور لوگ بھی ہوں گے، تمہارا کیا اندازہ ہے ان کی تعداد کیا رہی ہوگی؟ ظاہر بولا وہ درجنوں افراد ہیں، میرا خیال ہے ان کی تعداد 200 تک بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے اولیو ہاورڈ نے ہاروت رابیل کی ساری قوت ہماری تلاش میں جھونک دی۔ ظاہر نے حیرت سے کہا ہاروت رابیل کی قوت؟ میں نے کہا ہاں، کچھ تو افرادی قوت اور کچھ اس کی دولت۔ ظاہر ہے ہاروت رابیل نے ہمارے ہاتھوں بدترین ہزیمت اٹھائی ہے، اب وہ ہر قیمت پر ہم سے انتقام لینے کے در پہ ہے۔ دوسری طرف اولیو ہاورڈ میرے ہاتھوں کئی بار کا شکست خوردہ ہے، یہ دونوں دشمن مل کر ہمارا قیمہ کر دیں گے۔ ظاہر نے نشیب کی طرف اشارہ کیا، وہ دیکھیے جناب۔ وہاں نیچے والی پارٹی کے لوگ ایک قطار میں پہاڑ کے دامن میں نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے کہا اگر وہ سیدھے اوپر آئے تو ٹھیک اسی مقام پر پہنچیں گے جہاں ہم موجود ہیں، لیکن وہ سیدھے نہیں آئیں گے، دائیں یا بائیں جانب جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سی سمت کا رخ کریں گے۔ ظاہر میری بات سن کر خاموشی رہا۔ یک کے بعد دیگرے 20 افراد نمودار ہوئے، اور جب ان کا کمانڈر مطمئن ہو گیا تو اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا اور تمام افراد رک گئے۔ ظاہر نے حیرت سے کہا اس پارٹی میں تو اور لوگ بھی تھے، وہ کہاں گئے؟ میں نے کہا ان سب کو ہماری نظروں میں آ جانا چاہیے تاکہ ہم ان کی نقل و حرکت سے باخبر رہیں۔ میرا جملہ مکمل ہونے سے قبل ہی مزید افراد نمودار ہوئے، یہ بھی ایک قطار میں سامنے آ رہے تھے اور پہلے والے دستے کے پیچھے تھے۔ اس دستے میں بھی 20 افراد تھے اور ان کا کمانڈر الگ تھا۔ ظاہر بولا ہمیں بڑے منظم طریقے سے تلاش کیا جا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تشویش سے کہا میری نظریں ان لوگوں پر جمی تھیں جو ہماری تلاش شروع کرنے کے لیے اشارے کے منتظر تھے۔ پھر غالباً انہیں اشارہ مل گیا اور ہم نے ان کا رخ تبدیل ہوتے دیکھا۔ تمام افراد کا رخ ہمارے دائیں جانب ہو گیا تھا۔ ان کا تبدیل شدہ رخ دیکھ کر ظاہر کے منہ سے بے اختیار نکلا خدایا تیرا شکر ہے۔ وہ لوگ آگے بڑھنے لگے۔ راہ میں آنے والی ہر جھاڑی کو وہ سنگین سے ٹھونکتے بجاتے چل رہے تھے۔ اگر کوئی ان میں چھپا ہوا ہوتا تو سنگینوں کی زد میں آنے سے نہیں بچ سکتا تھا۔ نیچے اس طرح ہماری تلاش کی جا رہی تھی اور اوپر پہاڑی کی چوٹی پر موجود ہراول دستہ بھی ہمیں تلاش کرنے والی پارٹی کے ساتھ ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ 20 منٹ کے دوران ہم نے 40 افراد پر مشتمل پارٹیاں دیکھیں جو اپنے پیشروؤں کے نقش قدم پر چلتی ہوئی ہماری تلاش میں بلندی کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ہراول دستے کو دیکھ کر تو اب یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ مرکزی پارٹی سے بچھڑے ہوئے کچھ افراد ہوں۔ ظاہر نے کہا آخر یہ لوگ کب تک ایک ہی سمت میں ہمیں تلاش کرتے رہیں گے؟
मैंने कहा वो बतदरीज ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक समत से मुतमईन होने के बाद वो जरूर पलटेंगे। जाहिर बोला अगर हम कोशिश करें तो उनके पलटने से कबल ही वादी पार कर जाएंगे। मैंने पलट कर देखते हुए कहा हाँ, वादी के पार नजर आने वाली पहाड़ी हमारी आज की मंजिल है। जाहिर ने इस बात में सर हिलाया और हम नाश्ता करके रवाना हो गए। हमारे जिस्म खराशों से पुर थे, कपड़ों का हुलिया बिगड़ चुका था और हम दोनों के शेव बढ़ चुके थे। इस हुलिये में अगर हम किसी शहर की समत निकल जाते तो हर देखने वाला हमें फकीर समझता। नाश्ता करने के दौरान मेरी नजर जाहिर के हाथों पर पड़ी। उसके दोनों हाथों की उंगलियों के नाखूनों में से एक भी सलामत नहीं रहा था। टूटे हुए नाखूनों से खून रिस रिस कर निकलता रहा था, जिस पर गर्द और मिट्टी की तहें जम गई थी। मुझे जाहिर के हाथों की हालत देखकर झुरझुरी सी आ गई, मगर उसके साथ ही मेरी नजर खुद अपने हाथों पर पड़ी। मेरे हाथों की हालत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। जाहिर ने मेरी निगाहों का ताक़ुब करते हुए अपने और मेरे हाथों को देखा। उसने तजवीज़ पेश की कि हाथ धो लिए जाएं, मगर मैंने ये कहकर तजवीज़ मुस्तरद कर दी कि जमे हुए खून की वजह से हमारे नाखूनों को थोड़ा बहुत तहफ़्फ़ुज़ तो हासिल है। हाथ धोने के बाद दोबारा खून रिसने लगता और हमें असर नौ तकलीफ से गुजरना पड़ता। सुबह के पहले हिस्से के दौरान हमें किसी खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, हमें किसी मुश्किल का सामना भी नहीं करना पड़ा। गुज़श्ता 3 दिन का सफ़र बड़ा पुरसऊबत रहा था, इस लिहाज से ये सहल तरीन सफ़र था। सुबह 10 बजे के करीब हमें हंगामी तौर पर छुपना पड़ा। हमने किसी किस्म की आवाज़ सुनी थी। छुपने के बाद हमने दूर दूर तक का जायजा लिया, मगर दुश्मन दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। जाहिर ने पूछा, ये कैसी आवाज़ थी जनाब? मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, मेरा ख्याल है वो किसी जानवर की आवाज़ थी। मगर जो कुछ मैं कह रहा था खुद मुझे भी उस पर यकीन नहीं था, लेकिन इसके अलावा और कोई इम्कान भी तो नहीं था। ये अलग बात है कि ना तो हम उस आवाज़ की शनाख्त कर सके थे और ना ही हमें नज़दीक दूर किसी जानवर के गुजरने के आसार दिखाई दिए थे। दोपहर तक हम आधी वादी उबूर कर चुके थे। गोया हमने अपनी आज की मंजिल की तरफ आधा सफ़र तय कर लिया था, और ये एक खुशाइंद बात थी कि बगैर किसी खतरे से 2-4 हुए हमने इतना सफ़र तय कर लिया था। अभी मैं यही सोच रहा था कि दफतन जाहिर रुक गया। मैंने पलट कर पूछा, क्या बात है जाहिर, तुम रुक क्यों गए? जाहिर की नज़रें पहाड़ी पर जमी हुई थीं। वो बोला, पहाड़ी पर नकलो हरकत नजर आ रही है जनाब। मैं तेजी से पहाड़ी की तरफ मुड़ा और मुझे फौरन ही पहाड़ी की चोटी के नजदीक छोटे छोटे मुतहर्रक धब्बे नजर आ गए। फासला ज्यादा होने की वजह से वो लोग छोटे छोटे धब्बों की सूरत में नजर आ रहे थे। मैंने बहुत तेजी से हरकत की और एक टीले की आड़ ले ली। जाहिर ने भी मेरी तकलीद की। जाहिर ने कहा, हम पूरी तरह घिर गए हैं जनाब। मैंने इस बात में सर हिलाया, कहा हाँ, हमें दोनों तरफ से घेर लिया गया है। जाहिर बोला, अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा, हम सफर जारी रखेंगे जाहिर, इसके सिवा हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं। जाहिर परेशानी से बोला, लेकिन हम किस समत में सफर करेंगे? दोनों तरफ से तो हमें घेरा जा चुका है। मैंने कहा, हम सीधे आगे बढ़ेंगे, इसलिए कि अकब से आने वाली पार्टी के लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले होंगे। जाहिर ने कहा, ठीक है जनाब, इस नाहमवार वादी में छुपने की बहुत जगह हैं, हम छुपते छुपाते आगे बढ़ते रहेंगे। अगले घंटे के दौरान हमारा सफर जारी रहा। हस्ब साबिक मैं आगे था और जाहिर मेरे अकब में चल रहा था। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ हम पहाड़ी से नजदीक तर होते जा रहे थे, लेकिन अब हम पहले जैसी तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हर लहजा हमें देख लिए जाने का धड़का लगा हुआ था। बार बार हमें यूं लगता जैसे हमें देख लिया गया है और हम किसी जगह छुप जाते, मगर ये गनीमत था कि हम महफूज रहे और किसी की नजरों में नहीं आए। लेकिन दुश्मन मुस्तकिल हमारी नजरों में था। यही वजह थी कि जब भी हम किसी खुली जगह से गुजरते तो रेंगते हुए गुजरते। फिर वो लोग पहाड़ी से नीचे उतर आए। पहाड़ी के दामन में वो एक कतार की सूरत में खड़े हो गए थे। हम उनकी आवाजें नहीं सुन सकते थे, लेकिन मेरा अंदाजा था कि उनका कमांडर उन्हें हिदायत दे रहा था। उसके जरा ही देर बाद वो वादी में फैलकर आगे बढ़ने लगे। अपनी संगीन लगी बंदूकों से वो हर झाड़ी को खंगाल रहे थे, मगर वो तो सिर्फ एक टोली थी जो पहाड़ी से नीचे उतर आई थी। उनसे कुछ पीछे एक और टोली पहाड़ी के दामन तक पहुंचने वाली थी और उसके पीछे भी एक तीसरी टोली थी। ये बात साफ जाहिर थी कि वादी में पहुंचने के बाद वो भी वही करते जो पहली टोली वाले कर रहे थे। जाहिर ने कहा, इस कदर बारीक बीनी से की जाने वाली तलाश से हम कैसे बच सकेंगे? उसके लहजे में तशवीश का गहरा अंसर था। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो जाहिर, मगर उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम कोशिश करेंगे। जाहिर ने मुर्दा से लहजे में कहा, वो तो कर ही रहे हैं। 3 दिन की कोह पैमाई के बाद ये नतीजा सामने आया है। मैं गिरदोपेश का जायजा ले रहा था। मैंने बाईं जानिब देखा, दाईं जानिब निगाह दौड़ाई और अकब का जायजा लिया। जाहिर ने बेसब्री से पूछा, क्या फैसला किया जनाब, किस समत चलने का इरादा है? मैंने कहा, तुम्हारा क्या मशवरा है जाहिर, क्या हम वापस पलट जाएं? जाहिर ने बड़ी शिद्दत से सर को मनफी जुम्बिश देते हुए कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, तो फिर क्या किया जाए? मैं उन लोगों की पोजीशन ज़हन नशीन करने की कोशिश कर रहा था जो हमें ढूंढते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे थे।
हमसे उनका फासला 100 गज के करीब था और उनमें से दाएं सिरे वाले लोग हमसे ज्यादा करीब थे। जाहिर बोला, मेरा ख्याल है हमें अपनी जानिब बढ़ने वाले लोगों के सिरे की तरफ हो जाना चाहिए। मैंने बेख्याली से कहा, कौन से सिरे की तरफ जाहिर? वो बोला, दाएं सिरे की तरफ जनाब, उस तरफ वाले लोग हमसे ज्यादा नजदीक हैं। मैंने कहा, इससे कोई फायदा नहीं होगा जाहिर, हम उनसे पार नहीं निकल सकेंगे, वो बहुत नजदीक हैं। जाहिर ने चिल्लाकर कहा, अच्छा ठीक है, लेकिन वापस जाने से हमें क्या फायदा हासिल होगा? मैंने अपनी पेशानी पर बहता हुआ पसीना पोंछा जो मेरी आंखों में घुसने की कोशिश कर रहा था। वो लोग हर गुजरते हुए लम्हे के साथ हमसे करीब होते जा रहे थे। जाहिर पर इज़्तिराबी कैफियत तारी थी। जाहिर ने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, खुदा के लिए कुछ कीजिए जनाब, दुश्मन नजदीक से नजदीक तर आता जा रहा है। जाहिर ठीक कह रहा था, दुश्मन का घेरा तंग होता जा रहा था और उसके साथ साथ हमारे बचने के इम्कानात मादूम होते चले जा रहे थे। इसी मुनासबत से जाहिर के आसाब भी जवाब देते जा रहे थे। मैंने पुरसकून लहजे में कहा, एक बात बताओ जाहिर, अगर हम दाईं जानिब से न निकल सके तो क्या होगा? जाहिर ने मुझे यूं देखा जैसे उसे मेरी दिमागी सेहत पर शुबा हो। बोला, हम कहीं छुप जाएंगे जनाब और दुआ करते रहेंगे कि उनकी जद में आने से बच जाएं। मैंने इस बात में सर हिलाया। मैंने मगमूम लहजे में कहा, मैंने भी यही सोचा है जाहिर, अब तो बस यही एक सूरत रह गई है। मैं बहुत अफसरदा था। इतनी बेबसी और बेकसी का तो मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मेरा जी तो चाहता था कि उन लोगों से भिड़ जाऊं, लेकिन मैं इस बात से भी बखूबी वाकिफ था कि उनसे भिड़ने के बाद हम दोनों की जिंदगियों के इम्कानात बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे और हमारी जिंदगियां इतनी बेवक़्त हरगिज नहीं थी कि उन्हें यूं ही जाया कर दिया जाता। वो पहाड़ी सिलसिला हमारे पैरों की जंजीर बनकर रह गया था। वहां तेजी से सफर करना मुमकिन नहीं था और दुश्मन की तादाद इतनी ज्यादा थी कि हम दोनों मिलकर भी उन सब को खत्म नहीं कर सकते थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे बैक वक्त पूरे अमेरिका के बदमाश ओलिव हार्वर्ड के साथ मिलकर हमारे खिलाफ सफारा हो गए हों। जाहिर ने कहा, लेकिन हमें किसी न किसी जानिब तो हरकत करनी चाहिए जनाब। मैंने कहा, मुझे मालूम है जाहिर। मैं जमीन से कुछ और चिपक गया। जाहिर ने हिज़यानी कैफियत में कहा, समझ में नहीं आता कि आपने क्या सोच रखा है। मैंने कहा, यह बड़ी बेयकीनी का वक्त है जाहिर, मैं अपने बारे में ही कुछ नहीं कह सकता, लिहाजा तुम खुद को बचाने के लिए जो चाहो करो। जाहिर ने हैरान होकर पूछा, क्या आप संजीदगी से कह रहे हैं? मैंने कहा, चाहो तो मेरे साथ रहो, चाहो तो जिस जगह को ज्यादा महफूज समझो उधर निकल जाओ। अगर दोनों की किस्मत ने वफा न की तो शायद किसी एक की कर जाए। अगर हम में से एक मुश्किल में गिरफ्तार हो गया तो दूसरे का आसरा तो रहेगा। साथ रहने में या दोनों मारे जाएंगे या दोनों बच जाएंगे। जाहिर ने कहा, ठीक है जनाब। तो मैं चला। ये कहकर वो रेंगता हुआ एक जाने बढ़ गया। मुझे मालूम था वो ज्यादा दूर नहीं जा सकेगा, इतना वक्त ही नहीं था। मैं जाहिर पर निगाह रखे हुए था। कुछ दूर जाने के बाद वो झाड़ियों के एक घने झुंड में रिंग गया। मुझे इत्मीनान हो गया कि अब जाहिर को आसानी से तलाश नहीं किया जा सकेगा। चुनाचे मैंने भी एक नजदीकी झाड़ी का रुख किया। जिन झाड़ियों में मैं घुसा था वो भी बहुत घनी थी और मुझे सूटकेस समेत पनाह दे सकती थी। मैं झाड़ी के अंदर जितनी दूर तक मुमकिन हो सका रिंग गया। वो लोग हमें तलाश करते हुए इतने करीब आ गए थे कि मैं उन्हें देख सकता था। कभी कभार किसी के बात करने की आवाज भी आ जाती थी और उसके बाद फिर खामोशी छा जाती। कभी बैक वक्त कई अफराद नजर आने लगते और कभी एक भी फर्द न दिखाई देता। मैं सांस रोके झाड़ी में दुबका रहा। कुछ देर यूं ही गुजर गई। अभी तक मेरी तरफ कोई नहीं आया था। ये इंतजार बहुत गिरा गुजर रहा था। मैं गुमगू की कैफियत में मुब्तला था और एक गाल ठंडी जमीन पर रखे लेटा था और मेरे कान हल्की सी आवाज भी सुनने के लिए मुस्तैद थे। फिर मुझे कदमों की धमक सुनाई देने लगी। कई अफराद मुझसे करीब होते जा रहे थे। मैं देख चुका था कि वो किस तरह झाड़ियों के अंदर राइफलों की संगीनें मार रहे थे और कुछ अजब नहीं था कि खासा अंदर होने के बावजूद कोई संगीन मुझ तक पहुंच जाती। अगर ऐसा होता तो बहुत बुरा होता, लेकिन इस नागहानी से बचने की कोई सूरत नहीं थी। मैं इस इम्कान पर इन्हिसार करने के लिए मजबूर था कि मैं किसी संगीन की जद में आने से महफूज रहूंगा। आवाजें बुलंद हो गई थीं और अब मेरे आसपास झाड़ियों में हर तरफ भारी बूटों की धमक गूंज रही थी। वो लोग हमें तलाश कर रहे थे। उनका अंदाज जिस कदर जारहाना था, इसका अंदाजा मुझे उस वक्त हुआ जब वो झाड़ियों के ऊपर चढ़ गए। एक राइफल की संगीन मेरे चेहरे से महज चंद इंच के फासले पर जमीन में धंस गई। मैं सांस रोक के पड़ा रहा। मेरी जिंदगी का इन्हिसार अब महज इत्तेफाक पर रह गया था, लेकिन नहीं, हमने शदीद जिद्दोजहद की थी और हमारे मकासद नेक थे। इसलिए अगर मैं और जाहिर बच जाते तो ये नहीं कहा जा सकता था कि हम इत्तेफाक से बच गए। ये कहना ज्यादा दुरुस्त होता कि खुदा की मदद हमारे शामिल हाल थी और खुदा की मदद शामिल हाल रही। हमें तलाश करने वाली पहली टोली गुजर चुकी थी और मैं और जाहिर ज्यादा ही महफूज रहे थे। जिस जगह जाहिर छुपा था वो जगह मुझे नजर नहीं आ रही थी, लेकिन ये बात साफ जाहिर थी कि अगर उन लोगों को जाहिर मिल गया होता तो बहुत गुलगबाड़ा होता।
इसके अलावा उन्हें ये भी इल्म हो जाता कि दूसरा भी कहीं नजदीक ही होगा और फिर वो वहां से हरगिज न टलते। तो जाहिर महफूज था और मैं भी, लेकिन मैं शदीद एहसास बेबसी में मुब्तला था। ऑलिव हावर्ड ने मुझे बहुत बेतुके तरीके से घेरा था। इस बार उसकी किस्मत जोरों पर थी और हम इस वीराने में आ फंसे थे जहां मीलों आबादी का नामो निशान तक नहीं था। ना हम ऐसे वीराने में फंसते और ना उसे हमारे खिलाफ अपनी पूरी कुव्वत इस्तेमाल करने का मौका मिलता। ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन हमारी ये कामयाबी अपनी जगह थी कि 3 दिन गुजरने के बावजूद उसके आदमी अभी तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। हमारी तलाश में हेलीकॉप्टर तक इस्तेमाल किया गया था और किया जा रहा था। पैदल अफराद की एक पूरी फौज हमारी तलाश में सरगर्दा थी, लेकिन उनके हिस्से में पैदर पै नाकामियों के सिवा और कुछ नहीं आ रहा था। इधर हम 2 अफराद थे जो बेसरो सामानी के आलम में भी इतने बहुत से लोगों को शिकस्त से 2-4 किए जा रहे थे। मैं सोचता रहा। सोचने के अलावा और काम ही क्या था। मुझे मालूम था कि झाड़ी से बाहर निकलने के बाद आज़ादी की जमानत खत्म हो जाएगी, लिहाजा मैंने अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं की। लेकिन अपनी तमाम तर कामयाबियों के बावजूद मौजूदा सूरत हाल मेरे लिए बहुत तशवीशनाक थी। उस पहाड़ी सिलसिले से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था। वक्त बहुत कीमती था। मुझे अंदाजा था कि बड और तहजीब पर मेरे और जाहिर के यूं अचानक गायब हो जाने से क्या गुजरी होगी। अरचंद के तहजीब मैल्कम एक्स और बड दोनों ही अपनी अपनी जगह एक पूरी तंजीम के बराबर थे, लेकिन जज्बाती वाबस्तगी बाज़ औक़ात बड़ी तकलीफ दे हो जाती है और ये जज्बाती वाबस्तगी हम तीनों के दरमियान कदरे मुश्तरक थी। मेरे ख्यालात का सिलसिला उस वक्त टूटा जब मुझे दूसरी टोली नजर आई। नजर क्या आई, सुनाई दी। पहली टोली की तरह उन लोगों की तलाश का भी खुसूसी मरकज झाड़ियां ही थी। मैं दिल ही दिल में उन घनी झाड़ियों को दुआएं देने लगा जिन्होंने हमारे लिए अपनी आगोश वा करके हमें इतने बहुत से लोगों से छुपा लिया था। पहली टोली की तरह दूसरी टोली भी नाकाम और नामुराद गुजर गई, लेकिन अभी तीसरी टोली बाकी थी, इसलिए अभी बाहर निकलना मुनासिब नहीं था। तीसरी पार्टी के अफराद ने हमें ज्यादा दीदारेजी से तलाश नहीं किया। इसकी वजह शायद उनका ये यकीन होगा कि हम वहां नहीं हैं। अगर होते तो अब तक हमें तलाश किया जा चुका होता। उनका ख्याल बिल्कुल गलत था, लेकिन मुझे इससे क्या गरज हो सकती थी। उनका ये ख्याल तो मेरे और जाहिर के हक में फायदेमंद था। झाड़ी से बाहर निकलने से कबल मैंने कुछ देर इंतजार कर लेना मुनासिब समझा। जब मुझे यकीन हो गया कि अब दुश्मन का कोई फर्द नजदीक नहीं है तो मैं बड़ी एहतियात से रेंगता हुआ झाड़ी से बाहर निकल आया। बाहर कोई नजर नहीं आ रहा था, मगर एहतियात के पेश नजर मैंने खड़े होकर चलने से गुरेज किया और घुटनों के बल चलता हुआ उन झाड़ियों की तरफ बढ़ने लगा जिधर मैंने जाहिर को जाते देखा था। जाहिर ने यकीनन मुझे देख लिया होगा, इसलिए वो फौरन ही झाड़ियों से बाहर निकल आया। जाहिर ने कपकपाते हुए कहा, उफ मेरे खुदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम उन बदबख्तों की नजरों में आने से बच गए। मैंने गौर से जाहिर को देखा। उसके चेहरे पर अभी तक हवाइयां उड़ रही थीं। मैंने कहा, तुम बहुत हवास बाख्ता नजर आ रहे हो जाहिर। जाहिर ने पानी के कैन की तरफ इशारा किया। बोला, ये देखिए जनाब। पहली टोली के गुजरने के बाद मैं अपनी जगह से जरा खिसक गया था, वरना वो संगीन इस कैन की बजाय मेरे जिस्म से टकराई होती। मैंने कैन को देखा जिस पर चमड़ा मुंढा हुआ था। एक मकाम से वो चमड़ा उधड़ा हुआ नजर आ रहा था। मैंने कहा, ओह, यानी तुम बाल बाल बच गए। जाहिर ने झुरझुरी लेकर कहा, जी हाँ जनाब। एक बदबख्त की संगीन इस कैन पर पड़ी थी। मेरा तो खून खुश्क हो गया था। वो यकीनन यही समझा होगा कि संगीन झाड़ी की किसी शाख से टकराई है। मैंने कहा, जब खुदा की मदद शामिल हाल हो तो ऐसे ही मुहय्यरुल उकूल वाक़यात पेश आते हैं। आओ अब किसी महफूज मकाम की तरफ चलते हैं। जाहिर ने मेरे साथ आगे बढ़ते हुए कहा, आपको वापस आते देख कर मेरी जान में जान आई जनाब, वरना मुझे खदशा था कि कहीं खुदा न खास्ता। मैं हंस पड़ा। कहा, जब तक हमारी जिंदगी है कोई हमें मार नहीं सकता, और जब तक किस्मत में आज़ादी लिखी है कोई कैद नहीं कर सकता। हम एक टीले की तरफ बढ़ रहे थे, इसलिए हमने मुनासिब यही समझा कि रेंगते हुए आगे बढ़े। हम पलट पलट कर देखते भी जा रहे थे। हमें वो लोग नजर भी आए जो हमारी तलाश में थे, लेकिन अब हमारी तरफ उनकी पुश्त थी और उनसे हमारा फासला दम बदम बढ़ता जा रहा था, इसलिए खतरे की कोई बात नहीं थी। जाहिर बोला, अकब से हमारी तलाश में आने वाली पार्टी अभी तक पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंची है जनाब। मैंने पलट कर देखा। कहा, अच्छा ही हुआ, उन्हें ताखीर हो गई। फिर जाहिर की तरफ मुड़कर कहा, इस कदर ताखीर काफी है। जाहिर मेरे जुमले पर चौंक पड़ा, क्या मतलब? मैंने कहा, अकब में आने वाली पार्टी पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुकी है, वो अभी अभी चोटी पर पहुंचेगी। जाहिर ने दोबारा पलट कर देखा और इस बार उसे वो लोग नजर आ गए। वो बोला, अब हमारे लिए और भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। मैंने बेपरवाही से कहा, परवाह मत करो, हम इन्हें धोखा देकर निकल आए हैं, अब वो चकरा कर रह जाएंगे। टीले के अकब में एक घाटी नजर आई जो खुदरौ सब्जे से भरपूर थी और पहाड़ी तक चली गई थी।
ज़ाहिर उसे देखकर खुश हो गया। बोला, इस घाटी में हम बिल्कुल महफूज रहेंगे जनाब, काश हम पहले ही इस तरफ निकल आते। मैंने गंभीर लहजे में कहा, हाँ, अब ये घाटी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। ज़ाहिर ने हैरत से पलकें झपकाई। बोला, क्या मतलब? क्या पहले ये घाटी हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम न करती? मैंने कहा, छुपने के लिए ये बेहतरीन जगह है और उन लोगों की तवज्जो का सबसे ज्यादा मरकज यही घाटी रही होगी। अगर हम यहाँ छुपे होते तो यकीनन पकड़े जाते। ज़ाहिर ने तवील सांस लेकर कहा, खुदा जो भी करता है उसमें उसके बंदों की बेहतरी होती है। घाटी में उतरने के बाद हमने बेखतर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब हमें अकब से भी देख लिए जाने का खतरा नहीं रहा था। दफतन ज़ाहिर ने कहा, कुछ देर आराम न कर लें जनाब। मैंने रुकते हुए कहा, कोई हर्ज नहीं है, खतरा हमसे बहुत दूर हो गया है। ज़ाहिर ने बैठते हुए कहा, शुक्रिया जनाब, जिस्मानी थकन से ज्यादा मैं आसाबी शिकस्तगी का शिकार हो गया हूँ। मैंने कहा, आराम भी करो ज़ाहिर, और गैर मुतवक्के तौर पर बच जाने की खुशी में हम थोड़ी सी अय्याशी भी करेंगे। कैन इधर लाओ। ज़ाहिर के चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई। उसने बेहद खुश होकर पूछा, हम पानी पियेंगे जनाब? मैंने कहा, हाँ ज़ाहिर, मुझे यकीन है कि इस पहाड़ी को पार करने के बाद हम बहुत जल्द किसी ढंग की जगह पर पहुंच जाएंगे, लिहाजा अब हम पानी की फजूल खर्ची बर्दाश्त कर सकते हैं। हमने पानी की फजूल खर्ची जरूर की, मगर ज्यादा नहीं की। ये बात हम दोनों के ही जहनों में थी कि बुरा वक्त आते देर नहीं लगती। पानी पीकर ज़ाहिर की जान में जान आई और उसके चेहरे पर जिंदगी की लहर दौड़ गई। अब वो काफी देर आसानी से चल सकता था। कुछ देर के बाद ज़ाहिर ने पूछा, वो लोग पहाड़ से उतरने के बाद क्या करेंगे जनाब? मैंने कहा, हमें तलाश करते हुए पहाड़ी की तरफ बढ़ेंगे। ज़ाहिर ने एतराज किया, तलाश करते हुए क्यों? वादी में तो हमें पहले ही तलाश किया जा चुका है। मैंने कहा, मेरे कहने का मतलब यही था कि वो हमारी तलाश में पहाड़ी की तरफ बढ़ेंगे। ज़ाहिर ने कहा, तब तो हमें खासी तेजी से सफर करना पड़ेगा, इसलिए कि पहाड़ से उतरने के बाद उन लोगों की रफ्तार भी काफी तेज रहेगी। मैंने कहा, हम तेजी से ही सफर करेंगे ज़ाहिर, अगर तुम्हारी थकन उतर गई तो चल पड़ेंगे। ज़ाहिर फौरन ही चलने के लिए तैयार हो गया और हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया।